طيب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، سورہ یوسف کی تفسیر کا یہ سلسلہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج آیت نمبر 77 کے بارے میں پہلے بات آپ کے سامنے انشاءاللہ آئے گی، اور جیسا وقت رہے گا اس کے لحاظ سے آگے آیت نمبر 78 اور آیت نمبر 79 ان کے بارے میں آج آپ کے سامنے انشاءاللہ بات رکھی جائے گی۔ سب سے پہلے آیت نمبر 77، اس میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون۔ قالوا يسرق، بھائیوں نے کہا۔ قالوا میں جو ضمیر ہے، پروناؤن ہے، وہ بھائیوں کے لیے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے لیے اسے استعمال کیا گیا۔ تو ہم کہیں گے کہ بھائیوں نے کہا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، این یسرق، اگر اس نے چوری کیا ہے، این یسرق، اگر اس نے چوری کیا ہے۔ یہاں جو پروناؤن ہے وہ بنیامین کی طرف، جن کو یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس روکنے کے لیے ان کے سامان میں اپنا پیمانہ رکھ دیا تھا، اور اس طرح سے ان کی چوری ثابت کی گئی تھی، حالانکہ انہوں نے چوری نہیں کی تھی۔ تو اس کے بارے میں بھائیوں نے کہا کہ این یسرق، اگر انہوں نے چوری کیا ہے، یعنی بنیامین نے چوری کیا آج، فقد سرق اخ له من قبل، تو اس سے پہلے اس کے ایک بھائی نے بھی چوری کیا ہے۔ فقد سرق اخ له من قبل، تو اس سے پہلے اس کے ایک بھائی نے چوری کیا ہے۔ یہ بیان ہے کن کا؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا، یوسف علیہ السلام کے سامنے۔ اور بنیامین کے بھائی جن کے بارے میں یہاں بات کہی جا رہی ہے کہ ان کے بھائی نے چوری کیا ہے اس سے پہلے، وہ کون ہے؟ وہ خود یوسف علیہ السلام ہے، اور انہی کے سامنے یہ بات کہی بھی جا رہی ہے۔ اسی لیے معنی کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ قالوا ان یسرق، انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کیا ہے،
कोई ताज्जुब की बात नहीं, ये तो हैं ही ऐसे लोग। हम उर्दू में जब बयान करते हैं इस तरह की चीज को तो ऐसे ही बयान करते हैं कि अच्छा इसने चोरी किया, हाँ तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं, ये तो ऐसे ही लोग हैं, इनका तो काम धंधा ही ऐसा ही है। आज इसने किया है, इसके पहले इसके एक भाई ने भी किया था, हालांकि वो भाई तो उनके भी होते हैं, लेकिन खास तरीके से बिन्यामीन का भाई इसलिए कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन दोनों जो है एक माँ से थे और बकिया भाई दूसरे माँ से थे। सब की सब याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, लेकिन माएँ अलग-अलग थीं। तो ये यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन दोनों सगे भाई थे। इसीलिए यहाँ ये कहना बेहतर है कि तर्जमे में ये बात कही जाए कि अगर इसने चोरी किया है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, इसके एक सगे भाई ने इससे पहले चोरी की है। फ़क़द सरक़ अख़ुन लहू मिन क़ब्ल। अब यहाँ मसला यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में ही है, उनके बारे में ही ये बात कही जा रही है। और मुफस्सिरीन ने इसके ताल्लुक से तफसीर की किताबों में किस्से कहानियां बहुत जिक्र की हैं कि बचपन में ऐसा हुआ यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ। तो वो किस्से कहानियां यहाँ पर कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये चोरी चोरी का ये इल्जाम कब उनके ऊपर लगा था, उसके ताल्लुक से वो बातें मुफस्सिरीन ने अपनी तफसीर की किताबों में जिक्र की है। कुरान में इसका जिक्र नहीं, अहादीस में भी इसका जिक्र नहीं है। ये सारी बातें इसराइली रिवायात से ही ली गई हैं और इसीलिए वो किस्से कहानी की हैसियत रखती हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम इसके बारे में ये कह सकें कि वाक़ई ये चीज़ साबित है और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में उनसे भी ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि अगर ऐसी कोई चीज़ थी तो जैसे आज ये बिन्यामीन के ताल्लुक से, बिन्यामीन पर भी ये एक इल्ज़ाम है, उन्होंने चोरी नहीं की है, उन्होंने भी चोरी नहीं की है। वो आप जानते हैं, जैसा ऊपर से बात चली आ रही है, तो बिन्यामीन ने यहाँ कोई चोरी नहीं किया है। बल्कि उनके सामान में खुद ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के कहने पर सामान उनका रखा गया है ताकि इनको रोका जा सके और इनको ये चीज अच्छी तरह से पता भी है, इसलिए इनको कोई परेशानी भी नहीं है बिन्यामीन को इसको लेकर के, क्योंकि ये खुद भी चाह रहे हैं कि अपने भाई के पास यहाँ रहें। इन्होंने भी कोई चोरी नहीं की। यही मामला यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से भी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी कोई चोरी नहीं की। वो एक नबी हैं, रसूल हैं। एक नबी एक रसूल कभी भी उसकी पूरी जिंदगी बचपन से ऐसे गुजरती है कि वो लोगों के सामने उसकी पूरी जिंदगी आईने की तरह साफ रहती है और उसका किरदार, उसका कैरेक्टर बहुत ही आला दर्जे का होता है। बचपन से ही उनको इसी तरीके से उनकी तरबियत होती है और लोगों के सामने उनकी जिंदगी का ये नक्शा बड़ा क्लियर और वाज़ेह होता है। हर कोई जानता है उनके बारे में कि ये बड़े अमानतदार रहे हैं, बड़े ही सच्चे रहे हैं। उनकी सच्चाई, उनकी अमानतदारी ये लोगों के लिए एक नमूना, एक मिसाल, एक मॉडल रहती है। बचपन से ही वो इसी अंदाज से ज़िंदगी बसर करते हैं। तो कोई भी नबी, कोई रसूल, कोई चोरी नहीं कर सकता, चाहे बचपन का ही कोई मामला हो। तो इसीलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी कभी ऐसा किया नहीं है और ये उनके ऊपर एक इल्ज़ाम है, जो धरा जा रहा है उनके ऊपर इल्ज़ाम। और इस तरह की बात सुन कर के अभी खामोशी इख्तियार करना, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की मजबूरी है और वक्त का तकाज़ा भी है। क्योंकि अभी वो अपने आप को उनके सामने ज़ाहिर नहीं करना चाहते, वरना उन्हीं के बारे में ये इल्ज़ाम है, तो आदमी को ऐसे मौके पर गुस्सा भी आ जाता है। यही सब चीज़ें सीखने की हैं। आज के इस दर्स में ये बात ख़ास तरीके से हमें सीखने की है और
ये आज की क्लास में तज़किए नफ्स का जो पहलू है, वो सबसे पहले यही चीज़ है जो हमें सीखनी है कि बाज़ मर्तबा ऐसे हालात होते हैं इंसान के साथ कि उसे अपने आप को काबू में रखना होता है, अपनी ज़बान को काबू में रखना होता है। ऐसा नहीं कि सामने वाले ने इश्तिहाल दिलाया, गुस्सा दिलाया और हम गुस्से से बेकाबू होकर के अपनी ज़बान से जो कुछ भी चाहा बोलना शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अपने आप पे कंट्रोल रखना होता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में ये बात कही गई है। अभी जो ये कह रहे हैं ना कि उनके एक भाई ने पहले चोरों की चोरी किया, ये कौन भाई? यही यूसुफ अलैहिस्सलाम। और उन्हीं के सामने कही जा रही है बात, और उन्हें पता भी है कि ये उनके ऊपर इल्जाम है और भाई लोग ये बात गलत कह रहे हैं। फौरी तौर पर ऐसी जब कोई बात आदमी सुनता है तो आपे से बाहर हो जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता है। जब कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो अपने आप को जाहिर भी कर देगा। अब तक तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके सामने ज़ाहिर नहीं हो पाए हैं कि यही यूसुफ है। उनके वहम गुमान में भी कहीं नहीं है कि ये यूसुफ है। अगर थोड़ा भी ये अपनी तरफ से कुछ ज़ाहिर करें यहाँ पे, गुस्सा दिखाएँ और उनको कहें कि नहीं तुम लोग उनके बारे में गलत कह रहे हो, उन्होंने ऐसा नहीं किया है, ऐसी कोई भी बात तो कहीं अगर कहीं भी हल्का-सा भी बचपन में देखा है तो थोड़ा बहुत तो अंदाजा होता है ना कि बड़े होने के बाद वही शक्ल। और थोड़ा बहुत अगर कहीं उनके ज़हनों में रहा हो कि इनकी शक्ल तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत मिलती-जुलती है, ये कहने के बाद तो यकीन में तब्दील हो जाएगा ये कि ये यही यूसुफ है। तो वहाँ अपने आप को उन्हें रखना भी है, सिग़े राज़ में रखना भी है। यानी अब तक जो ये एक सीक्रेट है, वो सीक्रेट बना रहना चाहिए, वो ज़ाहिर नहीं होना चाहिए। उसके लिए अपने आप को कंट्रोल में रखना है। ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हर चीज़ का जवाब दिया जाए, नोट कर लीजिएगा, यही पॉइंट है। हर जगह पर हर चीज़ का, हर कही हुई बात का जवाब देना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कभी वक़्त का तकाज़ा होता है और मसलहत होती है। मसलहत ये हमसे मुतालबा करती है कि यहाँ हम अपनी ज़बान को काबू में रखें, खामोशी इख्तियार करें। ऐसे मौके पर खामोशी इख्तियार करने का हुनर भी हमें आना चाहिए, वो भी हमें सीखना होता है। तो तरबियत के लिए ये भी बड़ी अहम चीज़ है। तो ये पहला जो है आज के दर्स में जो पहली बात थी तज़किए नफ्स की, वो हमने आपके सामने ज़िक्र की। तो क्या कहा अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बारे में कि फ़असर्रहा यूसुफ़ु फ़ी नफ्सिही वलम युब्दीहा लहुम। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में ये बात रख ली और उनके सामने ज़ाहिर नहीं किया। यानी ये चोरी का इल्ज़ाम जो उनके ऊपर आ रहा था, जो उन्होंने लगाया, अब खुद उन्हीं के बारे में ये इल्ज़ाम है, तो उन्होंने इसको अंदर ही अंदर ये गुस्से का घोंट पी लिया, ये इल्ज़ाम सह लिया और ज़ाहिर नहीं होने दिया कि वही यूसुफ हैं। अगर कहीं उनका गुस्सा पलटकर ज़ाहिर हो जाता, तो उनका यूसुफ होना भी ज़ाहिर हो जाता। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसको छुपा लिया अपने आप में, असर्रहा। असर्र ये लफ्ज़ अरबी में सिर्रुन से है, सिर्रुन कहते हैं सीक्रेट को। इसके माने जो है इसीलिए छुपाने के किया जाता है कि इसको अपने दिल में ही छुपा लिया कि इन्होंने भाइयों ने उनके बारे में जो बात कही है, गलत कही है, वो बात दिल ही में अपने रख ली, वो उसको ज़ाहिर नहीं होने दिया। क़ाल अंतुम शर्रुन मकाना, और कहा कि तुम बहुत बुरी जगह में हो,
तुम बदतर जगह में हो। तुम लोग इस वक्त यहाँ पर, तुम में से तुम्हारा एक आदमी चोरी में पकड़ा गया है। अभी तुम्हारा जो यहाँ स्टेटस है, तुम्हारा हमारे सामने, तुम्हारा जो भी जो ये मकाम है, मर्तबा है जो बना हुआ है हमारी निगाहों में, वो कोई अभी अच्छा नहीं है। अभी तुम लोग इस पोजीशन में नहीं हो कि हम तुम्हारी बात को तस्लीम कर लें। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गुस्सा तो अपने अंदर पी लिया, जाहिर नहीं होने दिया, लेकिन अब जो बात नोट करने की है उसे जो है आप नोट कीजिए। फिर भी ये बात कही कि अभी तुम लोग जिस पोजीशन में यहाँ पर हो, तुम्हारी पोजीशन यहाँ पर, तुम्हारा मकान, मकान जगह, प्लेस, पोजीशन, यहाँ आप कहेंगे पोजीशन, तुम्हारी पोजीशन यहाँ पर कोई अच्छी पोजीशन नहीं है, कोई अच्छी हालत नहीं है तुम्हारी। तुम में का एक आदमी चोरी के इल्जाम में यहाँ पर धर लिया गया है। तुम्हारी पोजीशन यहाँ कोई अच्छी पोजीशन नहीं है, इसलिए तुम जो कह रहे हो उस पर हम यकीन कर लें, ऐसा कोई मामला नहीं है, क्योंकि तुम्हारी पोजीशन हमारे यहाँ इस वक्त बहुत वाज़ेह किस्म की पोजीशन नहीं है, कोई अच्छी पोजीशन नहीं है, बल्कि बुरी पोजीशन तुम्हारी बनी हुई है। तुम्हारी जो इमेज है अभी वो इमेज अच्छी नहीं है, एक बुरी इमेज तुम्हारी हमारे सामने आई हुई है कि तुम में का एक आदमी चोरी के इल्जाम में धर दिया गया। वल्लाहु आलमु बिमा तसिफुन, जवाब भी दे दिया, लेकिन देखिए कितने अच्छे अंदाज में जवाब दिया कि अल्लाह तबारक व तआला को ज्यादा मालूम है, अल्लाह तबारक व तआला को अच्छी तरह से इल्म है उसके बारे में जो तुम बयान कर रहे हो। तुम जो कुछ कह रहे हो उसके भाई के बारे में, उसका इल्म अल्लाह ताला को अच्छी तरह से है। हमें पता नहीं कि उसने किया, चोरी नहीं किया, और तुम्हारी जबान पर हम इस वक्त एतमाद नहीं कर सकते कि तुमने कह दिया और हमने मान लिया कि इसने चोरी किया है तो इसके पहले इसके भाई ने भी चोरी किया था, हम तुम्हारी ये बात मान लें। तुम्हारी इमेज इस वक्त हमारे सामने ऐसी नहीं है कि हम तुम्हारी इस बात पर यकीन कर लें, ट्रस्ट कर लें। इसलिए ये जो है मसला हम अल्लाह ताला के हवाले करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला को बेहतर मालूम है जो तुम कह रहे हो, सही कह रहे हो, गलत कह रहे हो, क्या है मामला, हम इसे अल्लाह ताला के हवाले करते हैं। ये बात थी मेरे भाइयों इस आयत के बारे में, आपने बात नोट कर ली है, बड़ी अहम चीज है ये, आज के दर्स का ये खुलासा है। आप अपने जहनों में ये बात बैठा लीजिए कि जवाब देना, खामोशी इख्तियार करना, ये सब भी हुनर है, उसे भी सीखा जाता है। हुनर का मतलब स्किल, जो है महारत, स्किल, इंग्लिश में आप स्किल कह देते हैं, अरबी में उसको महारा कहा जाता है, उर्दू में हुनर कहते हैं। तो ये भी सीखना होता है, जिंदगी में ये भी सीखना होता है कि कहाँ आपको खामोशी इख्तियार कर लेनी है और कहाँ आपको किस अंदाज से जवाब देना है, ये हमको यहाँ सीखने को मिलता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों के उस इल्जाम को सह लिया और भड़के नहीं। मैं आपको इल्मुन नफ्स का, साइकोलॉजी का एक उसूल बताता हूँ। उसका एक उसूल ये भी है कि अगर आप ये चाहते हो कि किसी आदमी के मुंह से जो सच है उसे उगलवा लो, सच को उगलवाना चाहते हो, सच निकलवाना चाहते हो, तो उसकी दो शक्लें होती हैं। एक शक्ल ये है कि या तो उसे आप खूब गुस्सा दिला दो, ऐसी कोई बात कह दो कि वो गुस्से से आपे से बाहर हो जाए। जब इंसान इंतहाई शदीद किस्म के गुस्से की हालत में होता है तो फिर उसे कंट्रोल नहीं होता और
आदमी जब कोई बात छुपाता है ना तो अपने आप को कंट्रोल करके छुपाता है, तो उसका अपने आप पर कंट्रोल ये हल्का हो जाता है, कमजोर हो जाता है। नफ्स को कंट्रोल, उसका नफ्स पर कंट्रोल हल्का पड़ जाता है। उसकी जबान से वो बात निकल जाती है जो सच होती है, जो हकीकत होती है, वो हकीकत जबान से निकल जाएगी। क्योंकि कंट्रोल, उसका सेल्फ कंट्रोल जो था वो कमजोर पड़ गया है यहाँ गुस्से की वजह से। तो एक शक्ल होती है वो किसी से हकीकी और बात यानी वाकई जो सच्ची बात है जानना है, तो एक शक्ल ये होती है। दूसरी शक्ल ये होती है कि उसको इंतहाई खुश कर दो, इंतहाई गुस्से की हालत में, इंतहाई खुशी के आलम में इंसान को अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता है। जब बहुत खुश हो जाएगा तो सिर्फ सेल्फ कंट्रोल फिर उसका ढीला पड़ जाता है, और फिर वहां इंसान अपनी जबान से वो बात कह देगा जिसको वो कंट्रोल करके छुपाए हुए था और जबान से जाहिर नहीं कर रहा था, वो बात जाहिर कर देगा। तो ये दोनों शक्लें होती हैं। ये इल्मुन नफ्स का, साइकोलॉजी का एक उसूल है। किसी से आपको कोई बात जो सच है उन जो है जाहिर करवाना है, हकीकत क्या है, उसके दिल में क्या बात है, वो अगर निकलवाना है, तो ये दो शक्लें उसकी होती हैं। उसको लोग इसको लोग यूज करते हैं ऐसे मौके पर। और भला आदमी वो होता है जो ऐसे वक्त में भी अपने आप को कंट्रोल रखता है, याद रखिएगा। और ये इस्लाम सिखाता है, ये हमें कुरान सिखाता है, ये हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, आपकी अहादीस और आपका अमल सिखाता है कि ऐसे मौके पर भी कैसे अपने आप को कंट्रोल में रखना होता है। कभी भी चाहे गुस्से की हालत हो, चाहे खुशी का माहौल हो, अपने आप में रहो, अपने आप से बाहर मत निकलो। खुशी भी हर दर्जे की खुशी मनाना ये सही नहीं है। इसी तरीके से कोई गम लाहिक होता है, कोई परेशानी लाहिक होती है और गुस्सा आता है किसी मामले में, तो हद से गुस्से में आगे बढ़ जाना, अपने आप को कंट्रोल ना करना, ये भी इस्लाम मना करता है। कहता है गुस्से को पी जाओ, गुस्से की हालत में कुछ भी मत बोलो, गुस्से को कंट्रोल में करो, उसको आगे ना बढ़ने दो। ये अगर लिमिट क्रॉस करेगा तो आपके लिए परेशानी का सबब बनेगा। खुशी में भी कभी भी लिमिट को क्रॉस मत करो, खुशी के आलम में भी अपनी लिमिट में रहो। ये तवाजुन है, बैलेंस है, जिसे आप आज की जबान में बैलेंस कहते हैं। तो इस्लाम हमें ये सिखाता है कि खुशी और गम में भी आपको बैलेंस में रहना होता है, तवाजुन दोनों में रहना चाहिए। न हद दर्जा खुशी, न हद दर्जा गम। किसी में भी आप जब डूब जाएंगे तो अपने असल मकसद से हट जाएंगे और जिंदगी के मकसद को आप भूल जाएंगे। बाज मर्तबा देखा हमने बाज लोगों को कि किसी शख्स से उनका लगाव दुनिया में इतना ज्यादा हो गया कि उनकी जुदाई बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल, बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। नहीं, इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता है। हर चीज में तवाजुन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। इस हद तक भी किसी को नहीं चाहा जा सकता दुनिया में कि उसकी जुदाई बर्दाश्त न हो पाए। इंसान अपना आप जो है फिर अपने आप को कंट्रोल में न रख सके। क्यों? क्योंकि ये दुनिया ऐसी जगह है जहां आजमाइश किसी भी शक्ल में आ सकती है। तो कभी अल्लाह तबारक व तआला, इंसान जब किसी से हद दर्जा मोहब्बत करता है, अपने रब को भूल जाता है, अपनी जो है रब की तालीमात को भूल जाता है, तो आजमाइश वहीं पे डाल देता है, उसी में आजमाइश में डाल देता है।
اس کے اپنے اس عزیز اور پیارے کی موت ہو گئی، تو کون سی چیز ہے میرے بھائیوں دنیا میں جو اسے واپس لے کے آ سکتی ہے؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دیوانے بن کر کے پھرتے رہتے ہیں گھر، اسی غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں کر سکتے، کیونکہ اس غم کو انہوں نے اپنے دل پر لے لیا ہے۔ توازن نہیں تھا ان کے پاس، بیلنس نہیں تھا ان کے پاس۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، بیلنس کرنا سکھاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کا بیٹا جو ابھی بقرعیدہ گزری ہوئی ہے، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ بیٹے کی اپنی ایک محبت ہوتی ہے، اور یقیناً یہ محبت ان کو بہت زیادہ رہی۔ ان کی بیوی ہاجر کو بھی اپنی اس بچے سے بے پناہ محبت رہی، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اور یہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی، وہ آزمائش میں کھڑے اترے۔ آزمائش بہت سخت تھی یہ، کیونکہ بیلنس ہے۔ جب تک بیلنس میں آپ رہیں گے، آزمائش کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آزمائش آئے گی تو آزمائش کے موقع پر آپ کامیاب ہوں گے۔ لیکن ان بیلنس اگر ہیں تو آزمائش کے موقع پر اپنے پیر پر کھڑے نہیں رہ پائیں گے، آزمائش کے وقت میں کھڑے نہیں اتریں گے، کامیاب نہیں ہو پائیں گے، کسی نہ کسی مصیبت کا شکار ہو جائیں گے، اپنے اس امتحان میں ناکام ہو جائیں گے۔ اسی لیے کبھی بھی ان چیزوں کو بیلنس میں رکھیں۔ یہ آج کے درس کی پہلی آیت تھی۔ اس کے بعد بھائیوں نے پھر کیا کہا؟ قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانه انا نراک من المحسنین۔ تو بھائیوں نے کہا کہ اے عزیز، یا ایھا العزیز، بھائیوں نے کہا اے عزیز۔ یہ عزیز مصر کا جو حاکم ہوتا تھا اس کو عزیز کہا جاتا تھا، عزیز مصر اس لیے بار بار کہتے ہیں۔ یہاں کے وہاں کی جو بھی رولر پارٹی ہوتی تھی، اس کا جو بھی حاکم ہوتا تھا اس کو عزیز کہا جاتا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام ابھی وہاں کے حاکم بنے نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو صلاحیت دی تھی اور جو انہوں نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی اور ساتھ میں اس کی تدبیر بھی بتائی، اور ان کو اس کا جو ہے فائنانس منسٹر بنایا گیا، اور جس خوبی سے، جس صلاحیت اور مہارت سے انہوں نے پوری سچویشن کو ہینڈل کیا، اس کی وجہ سے بادشاہ کی نگاہ میں ان کی اہمیت اتنی بڑھ گئی تھی کہ اب گویا کہ پورا کام یہی دیکھ رہے تھے، اور بادشاہ کی حیثیت، عزیز مصر کی حیثیت ایک ربر اسٹامپ کی ہی رہ گئی تھی۔ یعنی وہ اصل جو ہے ایکٹیو جو حکومت میں جو شخص تھے وہ یہی یوسف علیہ السلام تھے، اور یہی سارا نظام سنبھالے ہوئے تھے، اسی لیے ان کو یہاں پر عزیز کہا گیا۔ قالوا یا ایھا العزیز، انہوں نے کہا، یعنی بھائیوں نے کہا کہ اے عزیز، اے عزیز مصر، اے حاکم مصر، ان لہ ابا شیخا کبیرا، یقیناً ان کا ایک بوڑھا باپ ہے، بڑی عمر کا، اولڈ ایج، کبیر کہتے ہیں اولڈ ایج، بوڑھا، شیخ بھی اسی کے معنی میں ہوتا ہے، عربی زبان میں شیخ کہتے ہیں بڑھاپے کی عمر کو، اور یہ بڑھاپے کی عمر اور زیادہ ہو جائے اگر تو کہتے ہیں وہ شیخن کبیرن، یعنی بہت ہی بوڑھے، بالکل بوڑھے، ان کا ایک بالکل بوڑھا باپ ہے۔ ان لہو ابن شیخن کبیرن، کہا کہ ان کے ایک بوڑھے، انتہائی بوڑھے باپ ہیں۔ اب یہاں نوٹ کیجئے گا، پھر جو ہے تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا
کہ جو قرآن میں ذکر کیا اللہ تبارک و تعالی نے کہ بھائی لوگ یوسف علیہ السلام کو تو بڑی عزت کے ساتھ یا ایھا العزیز، یوسف علیہ السلام کو بڑی عزت کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے عزیز مصر، مصر کے حاکم، بڑی عزت کے ساتھ کہہ رہے ہیں، لیکن خود اپنے باپ کے بارے میں وہ بات جو احترام کے ساتھ ہونی چاہیے اور جس طرح کا احترام ظاہر ہونا چاہیے وہ احترام نظر نہیں آ رہا۔ اپنے بھائی کے تعلق سے بھی، بنیامین کے تعلق سے بھی، جن کے سامان میں یہ چوری کا مال پکڑا گیا، جو چوری کا نہیں تھا بلکہ جان بوجھ کر کے رکھا گیا تھا، ان کے تعلق سے بھی کہیں آپ نوٹ کیجئے گا ہمدردی کا کوئی ایک سینٹنس بھی نہیں ہے۔ کہیں بھی ان بھائیوں نے جب ملا وہاں پہ تو یہ بات نہیں آپ پڑھیں گے اس میں کہ وہ پوچھیں ان سے بھائی یہ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا، آپ کے پاس کیسے آیا، یا یہ کہ جو ہے عزیز مصر سے، حاکم مصر سے یہ کہتے کہ شاید غلطی سے کہیں رکھا گیا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کے کسی آدمی نے غلطی سے رکھ دیا ہو سامان کے ساتھ، ہمارا بھائی تو ایسا نہیں ہے، یہ تو بہت سیدھا آدمی، آپ کہیں دیکھ رہے ہیں ایسا؟ کچھ نہیں۔ اپنے اس بھائی کی طرف سے ڈیفنس میں ایک سینٹنس بھی نہیں، بلکہ الٹے جو ہے انہوں نے اپنے دل کی بڑاس نکالی کہ آج اس نے چوری کیا، اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کیا، یہ لوگ تو ہیں ہی ایسے۔ یہ ان کا معاملہ ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا معاملہ ہے۔ اور اب باپ کے تعلق سے بھی ان کے جذبات، دل کے جو جذبات ہوتے ہیں نا وہ زبان سے ظاہر ہوتے ہیں، تو باپ کے تعلق سے بھی ان کے دل کے جذبات بالکل صاف نہیں تھے۔ وہ پہلے بھی بات آپ کے سامنے آئی ہے کہ اپنے باپ کو بھی یہ سمجھتے تھے کہ وہ یوسف علیہ السلام کو، ان کے بھائی بنیامین کو ہم سے زیادہ چاہتے، ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور یہ حرکت ان کے لحاظ سے ان کے باپ اس معاملے میں انصاف سے کام نہیں لے رہے ہیں، گمراہ ہیں، راستے سے بھٹک گئے ہیں، اس میں یہ باتیں وہ اپنے باپ کے بارے میں ذکر کرتے تھے۔ تو جب دل میں وہ بات ہے کہ باپ ہمارا ہمارے بھائیوں کو زیادہ چاہتا ہے، ہمارے بھائی کو زیادہ چاہتا ہے، ہم کو کم چاہتا ہے، تو جب ایسا کوئی موقع آتا ہے تو دل کے جو جذبات ہوتے ہیں، دل میں جو بات ہوتی ہے وہ زبان سے ظاہر بھی ہو جاتی ہے۔ یاد کیجئے گا، اسے نوٹ کر لیجئے گا، دل میں دشمنی رکھ کر کے اور دل میں نفرت رکھ کر کے زبان سے احترام کے الفاظ بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو پاتے، تو چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ کبھی بھی یہ ایک پوائنٹ بھی یاد کر لیجئے، نوٹ کر لیجئے میرا، کہ انسان کی زبان اس کے کیریکٹر اور اس کے اخلاق کی ترجمان ہوتی ہے، یعنی یہ زبان ہی اصل بتاتی ہے کہ انسان کا کیریکٹر کیسا ہے، دل میں کیا ہے وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ آپ لاکھ کہتے رہیں کہ میرا دل صاف ہے، میرے دل میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، ارے آپ کے دل میں کیا تھا کیا نہیں تھا وہ اللہ کو معلوم ہے، ہم کو کیا معلوم ہے؟ ہم کو تو وہ معلوم ہے جو آپ کی زبان سے نکل رہا ہے، اور زبان یہ دل کی ترجمان ہے، دل کی ترجمان ہے، یاد رکھیے گا، یعنی ترجمہ کا مطلب ٹرانسلیٹر جو ہے، دل میں جو بات ہے نا وہی زبان اس کا ترجمہ کرتی ہے، اس کا ٹرانسلیٹ کرتی ہے، وہ ہمیں بتاتی ہے۔ تو انسان کا کیریکٹر اس کی زبان سے جانا جاتا ہے، وہ چاہے کچھ بھی کہے
کہیں کہ بعض لوگ کیا کہتے رہتے ہیں کسی کے بارے میں، زبان کی ذرا تیز ہے لیکن دل صاف ہے. یہ کیا بات ہے؟ ہاں، اچھا ہے، دل کے بہت اچھے ہیں لیکن زبان تھوڑی ان کی سخت ہے. صاحب یہ زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے. دل میں کیا ہے، کس کو پتا ہے کہ دل کے صاف ہیں، دل کے اچھے، کس کو پتا ہے کہ دل کے اچھے ہیں یا برے ہیں؟ دل کا آدمی کیسا ہے وہ پتا زبان سے ہی چلتا ہے. ہمیشہ اچھی زبان استعمال کی. میری یہ نصیحت ہے آپ کو. انسان کی پہلی پہچان اس کی اپنی زبان سے ہوتی ہے. اس کا کیریکٹر کیا ہے، آدمی جب ساتھ میں رہتا ہے نا تب اسے سیکھتا ہے کہ کیریکٹر کیا ہے کیسا. لیکن پہلا جو سابقہ ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ اس کی زبان سے ہوتا ہے. آپ کی زبان ہمیشہ صاف، صحیح، لگی بجھی باتیں نہیں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں، بلکہ کلیئر کٹ جو صحیح باتیں ہیں وہ آپ کی زبان سے نکلیں. اور کسی بھی شخص کے لیے جو احترام کے الفاظ ہوتے ہیں وہ احترام کے الفاظ ادا ہوں گے. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ گیو ریسپیکٹ ٹیک ریسپیکٹ، جب آپ دوسرے کو احترام کریں گے، اس کو رسپیکٹ دیں گے تو وہ بھی آپ کو رسپیکٹ دے گا، دنیا بھی آپ کو رسپیکٹ دے گی. تو یہاں بھائیوں سے کہاں یہ مسئلہ ہوا ہے ذرا نوٹ کیجئے گا. کیا کہہ رہے ہیں؟ ان لہو ابن شیخن کبیرا، یقیناً ان کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے باپ کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ چھوٹے بیٹے کو نہیں پائیں گے تو بہت ان کو تکلیف ہوگی. یہ نہیں ہے کہنے کا انداز. اگر یہ بتانا چاہ رہا ہوں میرے بھائی، اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا، ان لہو، لہو کا مطلب ان کا، یعنی یعقوب علیہ السلام ان کے باپ، اور ان کے باپ نہیں ہے گویا کی. ایسے موقع پر یہی نہ ہوتا ہے تو غصہ آتا ہے کہ جو ہے وہ ان کے باپ تمہارے باپ نہیں ہے. یہ تو ان کے بھی باپ تھے یعقوب علیہ السلام، ان بھائیوں کے بھی باپ تھے جیسے وہ بنیامین کے باپ تھے. لیکن انہوں نے یہ بات نہیں کہی کہ جو ہے ہمارے باپ، ہمارے والد، ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے. انداز کہنے کا وہ بھی نہیں ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں. انداز کچھ اور ہے یہاں پر. ان لہو ابن شیخن کبیرن، ہمدردی حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی تھوڑی ہمدردی حاصل ہو جائے تاکہ وہ بنیامین کو چھوڑ دیں. بنیامین کو لے جانے کی خواہش تو ہے، اس لیے نہیں ہے کہ بنیامین سے انہیں کوئی محبت اور لگاؤ ہے، اس لیے نہیں یہ خواہش ان کو لے جانے کی کہ بنیامین ان کے بھائی ہیں. اپنے بھائی کے دفاع میں، ڈیفنس میں کچھ بھی اپنی زبان سے کہیں، ہمدردی کا ایک بول جو ہے بولیں، یہ کہیں بنیامین سے جا کر کے کہ پریشان مت ہو، ہم عزیز مصر سے بات کر کے تم کو یہاں سے لے کر کے جائیں گے. کچھ بھی نہیں ہے. سوتیلے بھائی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور اپنا سوتیلا پن دکھا رہے ہیں بھائی. ہاں، باپ کا بھی کوئی احترام یا ایسا بھی کچھ نہیں ہے کہ باپ کے تعلق سے واقعی یہ لوگ بڑے فکر مند ہیں. وہ انداز کہنے کا جو ہے وہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ بھی نہیں ہے. لیکن پریشانی صرف یہ ہے ان کو کہ اگر بنیامین کے بغیر گئے تو پہلے بھی ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام کے بغیر جب گئے تھے تو کیا حالات ہوئے تھے اس کا انہیں اندازہ تھا. تو اب ان کے سامنے یہ بات بھی ہے
कि अब अगर हम लेकर के हम जाएंगे और बिन्यामीन हमारे साथ नहीं हुए, तो फिर वहाँ पे सवाल और जवाब और जो बातें होंगी वो बड़ी लंबी होंगी। उतने सवालों का जवाब देना, बाप के सामने फिर एक मर्तबा शर्मिंदगी का इजहार, कि बहुत कुछ कह करके तो ले करके आए थे कि हम हिफाजत करेंगे, अपनी जान से बढ़ करके इनकी हिफाजत करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और अब हालत ये है कि फिर दोबारा उनके बगैर जा रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं, सिर्फ यही सोच रहे हैं कि किसी तरह से बिन्यामीन को लेकर के जाएं, ताकि उनको जाकर के अपने बाप के बाद पास जो है शर्मिंदगी का मसला ना हो। लेकिन वो बात जो बाप के एहतराम की होती है, वो मामला जो कि भाई की हमदर्दी का होता है, वो यहाँ कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। तो ऐसी हालत में भी ये क्या कह रहे हैं कि इनका एक बूढ़ा बाप है। ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे बाप बहुत बूढ़े हो चुके हैं, बहुत कमजोर हो चुके हैं, और ये उनका छोटा बेटा है। और छोटे बेटे से तो मोहब्बत होती है, बड़ा लगाव होता है, अंदाजे कि ये भी ना होगा। और सब कोई जानता है ये कि छोटे से तो और ज्यादा लगाव होता है, मोहब्बत होती है। तो अगर उसको नहीं पाएंगे तो हमारे बाप बहुत तकलीफ में होंगे। इस उम्र में उनको तकलीफ पहुंचाना हम नहीं चाहते। इसीलिए आप हम में से किसी को रख लीजिए अपने पास। हम में से कोई रहेगा, नहीं गया तो कोई बात नहीं, बाप को उतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी तकलीफ बिन्यामीन के न जाने से होगी। तो क्या कहा, फखुद अहदना मकानहु इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन। फखुद अहदना मकान, कहा आए अजीज, इनके एक बहुत बूढ़े बाप हैं, इसलिए तुम हम में से किसी को उनकी जगह पर ले लो। हमको रख लो अपने पास, किसी को भी एक को रख लो, उनको जाने दीजिए। ये उनका अंदाज था जो उन्होंने अजीज मिस्र के सामने, यानी खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने ये बात रखी, और थोड़ा सा मस्का भी लगाया। कहीं काम निकालने के लिए लोग क्या कहते हैं ना, मस्का लगाना पड़ता है। तो थोड़ा सा मस्का भी लगाया, क्या किया, कहा कि इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, यकीनन हम देख रहे हैं आपको कि आप एहसान करने वालों में से हैं, आप मोहसिनीन में से हैं। मोहसिन कहते हैं अच्छा करने वाले, अच्छे लोग, नेक लोग। हम देख रहे हैं कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े नेक आदमी हैं, और इसीलिए हमें आपसे ये उम्मीद है कि आप हमारी ये इल्तिजा सुन करके उसको मान लेंगे, और हम में से किसी एक को रख लेंगे, उनको छोड़ देंगे, उनको जाने देंगे। ये बात तो बड़ी ताकीद के साथ कह रहे हैं, इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन। इसीलिए हमने कहा कि थोड़ा मस्का भी लगाया उन्होंने। इंसान की जब तारीफ की जाती है तो थोड़ा खुश हो जाता है वो। और हमेशा ऐसे लोग, यहाँ पर भी एक पहचान इंसान की बता रहा हूँ आपको, उसे भी नोट कर लीजिए, ये भी तज़किए नफ्स की बात है कि इंसान अपनी तारीफ सुन करके खुश हो जाता है। और इसी वजह से बुरे लोग, किसी से अपना काम निकालना होता है उनको, तो जा करके उनकी तारीफें करते हैं, कि जब तारीफ करेंगे तो खुश हो जाएंगे, और खुश हो जाने के बाद हम जैसा चाहते हैं उनसे वो काम करवा लेंगे। मैंने अभी बताया था आपको ऊपर गुस्से की हालत में, तो तब ये बात भी कही थी कि ऐसे ही खुशी के वक्त में भी इंसान को अपने आप पर काबू नहीं रहता है। तो उसकी ये मिसाल है खुशी के मौके पर, कि इंसान, ये फितरत है इंसान की ये फितरत है, उसके नेचर में है कि जब उसकी तारीफ उसके सामने की जाती है तो बड़ा खुश होता है अंदर से। उर्दू में हम लोग इसको बारे में कहते रहते हैं कभी किसी को,
कि देखो जो है वो तारीफ किया तो फूल करके कुप्पा हो गए, यानी तारीफ सुनने के बाद फूले नहीं समा रहे अपने आप को वैसे जो है। तो आदमी जब तारीफ सुनता है तो अंदर से उसको हद दर्जा खुशी होती है। तो ऐसे मौके पर जब खुशी ज्यादा हो जाती है, उसे अपने आप पर फिर कंट्रोल नहीं रहता है, तो सामने वाला जो काम उससे निकालना चाहता है ना, वो निकाल लेता है काम। आसानी से बेवकूफ बनता है आदमी इसमें तारीफ सुन करके। तो पुराने जमाने से ये चीज चली आ रही है कि बादशाहों, हाकिमों, दरबारियों को जो है कि यहाँ ये चीज होती थी कि उनके पास ऐसे कुछ चापलूस किस्म के लोग होते थे जो उनकी तारीफ करते थे, और उनकी तारीफ करके जो है लाखों करोड़ों उनसे हासिल, जो चाहते थे उनसे हासिल कर लेते थे। वो खुश होकर के मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो ये बाकायदा लोगों का पेशा भी था ये, यानी यही काम ही करते थे कि बादशाह को खुश करके उसकी उल्टी सीधी तारीफें करके उससे कुछ रकम निकलवा लेंगे, उसी पर काम चलता रहता है। तो ये होता है, ये हर जगह पे लोग करते हैं। मदरसों में भी करते हैं कि जो जिम्मेदार लोग होते हैं उनके सामने इस तरह की उल्टी सीधी उनके कामों पे तारीफें करके अपने आप को, या हम उर्दू में कहते हैं कि अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं उनके पास, अपना नंबर बढ़ा करके अपनी उल्टी सीधी चीजें जो होती हैं वो मनवा लेते हैं। इसीलिए इस्लाम इससे मना करता है। आप किसी की भी तारीफ कर सकते हैं, उसके सामने भी कर सकते हैं, लेकिन सामने तारीफ करने के लिए दो कंडीशन है। एक कंडीशन का ताल्लुक जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं उससे है, और एक कंडीशन का ताल्लुक जो तारीफ कर रहा है उससे है। तो जिसकी तारीफ आप कर रहे हैं उसके ताल्लुक से ये कंडीशन है कि आपको ये यकीन होना चाहिए कि मेरी इस तारीफ से ये आदमी किब्र और गुरूर में मुब्तला नहीं होगा, घमंड नहीं आएगा, ईगो उसके पास नहीं आएगा इसकी वजह से। उसके बाद ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि वो आदमी जो है अपने आप को कुछ और समझने लगे, किसी और दुनिया की मखलूक समझने लगे और दूसरों को कीड़े मकोड़े की तरह से समझने लगे। गुरूर होता है लोगों में, लोगों की तबीयतें होती है। कोई अच्छा आदमी है, आपको अंदाजा है कि आप अगर तारीफ भी करेंगे तो वो फूल करके कुप्पा नहीं बनेगा, वो अपने कंट्रोल में ही रहेगा। तो कोई बात नहीं, आप उनकी तारीफ कर सकते हैं सामने। और दूसरी ये है, तारीफ करने वाले के बारे में कंडीशन ये है कि इसकी तारीफ का मकसद सिर्फ उसे मोटिवेट करना हो, यानी उसे और अच्छा करने के लिए, और बेहतर करने के लिए, उसको उस काम पर और उभारने के लिए, इस मकसद से उसने उसकी तारीफ की। अपना कोई मकसद, अपना उल्लू सीधा करना, अपना को उसको खुश करके कोई गलत चीज, कोई गलत काम अपना उससे निकलवा लेना, जिसे आजकल चापलूसी कहते हैं, जो चमचे लोग किया करते हैं। तो ऐसा इस नियत के साथ किसी की तारीफ करना ये जायज नहीं रखा गया है, इस्लाम में मना किया गया। सिर्फ एक ही शक्ल होती है, मोटिवेट करने के लिए आप, यानी उसको और भी अच्छा करे। जैसे बच्चा कोई अच्छा काम किया तो हमने उसको शाबाशी दी, बहुत अच्छा बना है, वेल डन जो आप कहते हैं, ताकि वो इससे उसको हौसला मिलेगा और आगे चल करके और मेहनत करके और अच्छा करने की कोशिश करेगा। तो इसी मकसद के लिए आप कर सकते हैं सामने किसी की तारीफ, वरना सामने तारीफ करने से मना किया गया। तो कहा, क्या कहा भाइयों ने, इन्ना नराका मिनल मोहसिनीन, यकीनन हम आपको मोहसिनीन में से देख रहे हैं। यकीनन हम आपको देख रहे हैं कि आप अच्छे लोगों में से हैं, बड़े नेक आदमी हैं आप,
इसलिए हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप हम में से किसी आदमी को ले लीजिए, रख लीजिए अपने पास और उनको छोड़ दीजिए। वो छोटे बच्चे हैं और इनके बाप बूढ़े हो चुके हैं। इनके बाप को बड़ा लगाव है उनसे, तो बाप इनकी मोहब्बत में ज़्यादा जो है परेशान हो जाएँगे। आप हम में से किसी को उनकी जगह पर ले लीजिए। ये भाइयों ने कहा, मेरे भाइयों। अब उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, क्योंकि ये तो सब की सब जो कुछ भी चीज़ें हुई हैं ना, ये सब की सब क्या है, जो प्लान के तहत हुई हैं, मंसूबे के तहत हुई हैं। अब उनमें से किसी को रखना होता तो उन्हीं के सामान में ये रखा गया होता। रोकना तो बिन्यामीन को है, तो जवाब भी उसी लिहाज से होगा। और वो बात जो कुरान में ज़िक्र की गई यूसुफ अलैहिस्सलाम के जवाब के ताल्लुक से, इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते उसके बारे में बात आपके सामने पेश की जाएगी। आज का दर्स इसी पर ख़त्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक।